Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we have an interactive edition. We'll be taking calls from you on mutual fund and related issues. The numbers on which you can call us are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले STD कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुबोध। पहले हेडलाइंस के साथ रवि। 3 IPOs worth 21,000 crore rupees to hit the market next week. Equity mutual funds attract nearly 40,000 crore rupees in September quarter, and foreign investors pull out 3,000 crore rupees from the Indian capital markets in the first week of November. अगले सप्ताह आएंगे 21,000 करोड़ रुपए के 3 IPOs। सितंबर तिमाही में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और विदेशी निवेशकों ने नवंबर के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम निकाली। And the first story that we are tracking is the IPO story. Hectic fundraising season will continue next week as 3 companies will launch their initial public offer or IPOs next week. These 3 firms, 197 Communications, which is the owner of Paytm, Sapphire Foods India, which operates KFC and Pizza Hut outlets, and Latent View Analytics, which plan to raise 21,000 crore rupees from these IPOs. 197 Communications will hit the market first on Monday to raise 18,300 crore rupees. This will be the biggest issue in India ever. Along with this, the issues of Sapphire Foods and Latent View Analytics will open for subscription on Tuesday and Wednesday respectively. Registering a twofold growth, equity mutual funds have attracted a net investment of nearly 40,000 crore rupees in the September quarter. As per the Association of Mutual Funds in India, AMFI data, the equity mutual funds saw flows of 39,927 crore rupees in 3 months as compared to 19,508 crore rupees in the June quarter. Prior to this, equity schemes had witnessed outflows for 8 months from July 2020 to February 2021. Within the categories of equity funds, Flexi Cap segment saw highest net infusion of 18,258 crore rupees, followed by sectoral funds at 10,232 crore rupees. Further, multi-cap and mid-cap funds witnessed net inflow of 3,716 crore rupees and 3,000 crore rupees respectively. Investment through the SIP route surged to 29,883 crore rupees, while monthly contributions to SIPs also rose to an all-time high of 10,351 crore rupees. We have the first caller online with us. Meenakshi from Bathinda is with us. Meenakshi, welcome to Market Mantra. थैंक यू। मैं रेगुलर जॉब में हूँ और अगर मैं अपनी सेविंग्स की बात करूँ तो मैं लगभग 10 से 15,000 रुपए हर महीने बचा सकती हूँ। मेरी चिंता मेरी बेटी के लिए है, वो बड़ी हो रही है और अगले 4-5 सालों में मुझे उसके कॉलेज एडमिशन के लिए ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे आपसे सलाह चाहिए कि मैं अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करूं और मुझे कोई रिस्क वाला सजेशन नहीं चाहिए प्लीज। ये जो रिस्क का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है कि कम समय जो म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं जिसमें इक्विटी भी होगा तो उसमें रिस्क होगा और वो रिस्क है वो कम समय में के लिए पैसा लगाने पे ये बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आप 5 साल से ज्यादा के अवधि के लिए लगा रही हैं और रेगुलरली लगा रही है जैसा आप बचत कर रही हैं तो ये रिस्क बहुत कम हो जाता है और बेहतर रिटर्न के लिए ये जरूरी है। और खासकर जब आप 5-10 साल के बाद इस पैसे की जरूरत पड़ेगी और एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो रिस्क काफी कम हो जाता है। तो मेरी सलाह होगी कि आप
कम रिस्क की फंड में पैसा लगाए, क्योंकि जो बिल्कुल बिना रिस्क के जो इन्वेस्टमेंट है वो तो केवल बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट है या पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट है, जहाँ पे आपको एक निश्चित रिटर्न मिलेगा और किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं होगी। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट है पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट। बेहतर रिटर्न के लिए आपको अगर कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारे ऐसे निवेश है जिसमें कि बहुत छोटा सा भाग इक्विटी में लगा रहता है, बाकी पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में ही लगा रहता है, और यहाँ पे 2-3% की से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कम समय में कम रिटर्न ये खतरनाक हो सकता है। अगर आप 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए लगाए तो ये रिस्की होगा। अगर आप कई सालों के लिए पैसा लगा रही है तो यहाँ मेरी सलाह होगी कि आपको यहाँ पे जरूर लगाना चाहिए, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या ऐसे फंड, इक्विटी सेविंग फंड, इनमें पैसा जरूर लगाएं, इसके बारे में जरूर विचार करें और जरा समझे कि ये रिस्क कहाँ से आता है और कहाँ नहीं जाता है, क्योंकि उसके बिना इसमें निवेश करने के बाद बने रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। मुंबई से किरण हमारे साथ हैं। किरण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार। ये मार्केट मंत्रा है। जी, सवाल पूछें। जी, भारत भूषण दिल्ली। हाँ बोलिए, पूछिए भारत भूषण जी। भारत भूषण जी पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार। तो धीरेन्द्र सर से मेरा एक प्रश्न है सर, इसके बारे में पूछिए। हाँ पूछिए भारत भूषण जी, पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए भारत भूषण जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। Let's look at Dhirendra, the question that Meenakshi from Bathinda, the earlier caller, had asked was that she was willing to invest 10 to 15,000 every month and wanted a lot of money for her daughter's education, which was coming up in the next 4 years' time. And the other thing she said was कोई risk नहीं चाहिए। जी हाँ, I actually missed the 4-year part. I thought that it's for a young child, and yes, for 4 years time frame, she does not have enough time to actually assume risk. For that, she is left with very limited option in terms of if the amount is needed, 1/4 of the if it is for a 3-4 year education and a quarter of the money is needed after 4 years, then that money has to be in fixed income. I think given the mental makeup and given the time frame, I think one cannot even optimize return by assuming any risk. It should be into fixed income investment only. So which category of fund? Short-term bond fund or ultra short-term? Yeah, short-term bond fund, because that will be able to give her more return, little more return than deposits, and on top of it she will have greater flexibility. गाजियाबाद से कृष्णा यादव हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार सर, एक्चुअली मैं कुछ टाइम से स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी। तो मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए या फ्लेक्सी कैप में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, कम से कम 20 साल। 20 साल के लिए अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत जबरदस्त रिटर्न मिला है। पिछले 1 साल में 72% रिटर्न मिड कैप का एवरेज रिटर्न है, 90% से ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में हुआ है। तो इसका आपको अंदाजा हुआ होगा कि लगाया हुआ पैसा काफी रफ्तार से बढ़ गया है, और ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप जब बाजार गिरता है तो ये बहुत रफ्तार से गिरते भी हैं, और इसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन जिस अवधि के लिए आप लगा रहे हैं और जिस तरह की वृद्धि हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अगर बने रह पाना संभव होगा तो इन कैटेगरी में रिटर्न ज्यादा मिलता है। लेकिन उस गिरावट के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और बहुत सारे निवेशकों को उस गिरावट का अभी तक अंदाज या एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। Kavi from Chennai is online with us. Mutual fund. Yeah, Kavi, you're live with us. Please put your question. Sir, good evening. Good evening. Yes, I would like to thank the entire Market Mantra team for doing such a great job. Thank you. So actually my question to Mr. Dhirendra Kumar is, actually people generally have opinion that the market is very dangerous, so we should keep themselves away. Even the elite people are also keeping themselves away from the market. So what is the star's opinion for these kind of investors? Suppose if you look at the mutual funds or the stocks, they had given around 20% or more than around 25% probability their stocks was given. So
what is his opinion by comparing with these market returns with the people's mind? And what is the advice to the new investors? Yeah, I think, this is actually an investor education challenge. Most people are very fearful of market because whenever somebody has accidentally come to the market without much of an understanding, as you know that, the first headline story was that, there is a big IPO opening tomorrow. Many people will get excited, they will invest. And if some of the investments turn out to be disappointing, investors invest very easily when the market is doing very well. And that is the time when most mistakes are done, or most investors actually invest without much of a thinking, simply because they think that they are missing the bus. The fear of missing the opportunity actually attracts them to the market, and that is how, they invest relatively, not without applying much thinking. I think if, market is very risky for short-term investment. If you are investing for few days, few months, few weeks, it is very risky. Making money in the market is a matter of chance then. It turns into an speculation. If you are methodical about it, if you start investing regularly, if you diversify your money, if you diversify your investment, if you invest regularly, steadily, because markets will be very erratic. If you don't invest lump sum, markets, you will be able to navigate the risk much better. The problem is that, most investors come in a manner which turns out to be very disappointing, and that enhances the risk perception. So learn how to invest, learn why equities give better returns, and do not speculate. Invest only your long-term money. If you follow these rules, I think, you'll become friends with the market and benefit from it. दिल्ली से करमवीर हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी करमवीर, हम आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हैं, शायद फोन लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस, फोन लाइन में गड़बड़ी की वजह से हम नहीं सुन पा रहे हैं। Dhirendra, in the story that we covered recently about the inflow into equity funds, the Flexi Cap fund, which was just referred to in the question gone by, yes, saw the highest net infusion. But I think before that we have a caller from Mumbai back with us. Kiran is online with us. Kiran, welcome to Market Mantra. Yeah, thank you for giving me a chance. Yeah, go ahead. धीरेन्द्र जी से एक क्वेश्चन है, एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है FD 6.7% देती है 5 years term deposit. Any mutual fund scheme which can give more than 6.7% for more than 5 years? Yeah, there are many funds, even I'm hopeful that, any fund with even 10-15% allocation to equity will be able to give you more return. If you look at, conservative hybrid fund, 7.5% has been the return from that, or equity savings return fund, they have been able to give a 8.5% return over the past 5 years. The whole problem is that, the difference between the deposit or the post office scheme that you are referring to, you get a guaranteed return, and you get that guaranteed return, no more, no less. The problem of mutual fund, why many people are unable to reconcile with it, that it could be little more, it could be little less. And I'm hopeful that these returns over a 5-year time period, they are unlikely to be, lower than that. It is likely to be reasonably, better. Because on a 6%, 7% return, earning 10% is actually, it looks like earning 3% more, but it is, almost 40% more return. So instead of 7, if you are able to earn, something like 10%, that becomes, it's substantially higher, 40% more return. And that is what equity saving fund have been able to give, have been able to deliver in the last 3 years. And I'm referring to averages, the outliers could be very different, could be higher. जी, दिल्ली से भारत भूषण हमारे सुनने की हमारी परमिशन थी घर पे, और कुछ हमें टीवी वगैरह देखने नहीं देते ना पिताजी हमारे। जी भारत भूषण जी, आप लाइन पर हैं, अपना सवाल पूछें। अच्छा सर, नमस्कार सर सभी को। जी नमस्कार। सुबह क्या कहते हैं, ये धीरेन्द्र सर जी, अब मैं ETF के बारे में पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बता। अच्छा सर, मुझे जी एक ETF के बारे में बताइए जो निफ्टी से कोरिलेट होता हो और उसका उतार चढ़ाव भी निफ्टी के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो, खरीदने बेचने में दिक्कत ना आती हो, और एक गोल्ड ETF भी बता दीजिए साथ साथ में। धन्यवाद सर। गोल्ड ETF निपॉन इंडिया का गोल्ड ETF सबसे बड़ा है और उसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है, और उसका भी दाम गोल्ड के दाम से जुड़ा हुआ है।
निफ्टी का जो ETF है वो SBI का ETF सबसे बड़ा है और वहां पे सबसे क्लोज कोरिलेशन है निफ्टी से और वो सबसे कम खर्चे वाला भी है। तो और वहां पे लेकिन जब भी आप ETF खरीदते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप किस दाम पे खरीद रहे हैं और उसका NAV के कितने आसपास है। वो NAV से बहुत ज्यादा पे कोई भी ETF चाहे वो कितना भी बड़ा हो ना खरीदें। जी धीरेन्द्र, आपने अभी जो ETF की बात की है और हालांकि अभी जिस तरह का हम बाजार देख रहे हैं इसको लेकर भी आपने कहा कि चढ़ते हुए बाजार में लोगों का जैसे उत्साह रहता है और इसमें नया निवेश लोग इस समय करते हैं जबकि एक्चुअली हर समय करना चाहिए। लेकिन अभी भी पिछले हफ्ते भी हमने देखा था और इससे पहले भी देखा था कि ETF के लिए भी अब लोगों में एक नई श्रद्धा जाग रही है। लेकिन चलिए इस सवाल को बाद में लेते हैं। पहले हैदराबाद से राजेश के पास चलते हैं, उनका सवाल सुनते हैं। राजेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। नमस्ते। मेरे पास एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, DSP क्वांट फंड है और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। ये तीनों फंड कैसे है और इसमें मैं रेगुलर इन्वेस्ट करता हूँ, लंबे समय का हॉरिजन है? तीनों फंड आपके अबव एवरेज हैं और अगर आप रेगुलरली पैसा लगाते हो और ये तीनों मिलाकर के एक मॉडरेटली, अभी आपके पास कोई लार्ज कैप फंड नहीं है लेकिन ये रीजनेबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपका। आपके अधिकतर निवेशकों के लिए जरूरी ये है कि आप लोग काफी ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हैं कि किसी फंड का चुनाव कैसा है, अच्छा है या नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप एक एवरेज या अबव एवरेज फंड भी लेते हैं और भविष्य में वो कैसा करेगा इसके बारे में हमें नहीं पता, जिस पर कि आपका पूरा रिजल्ट डिपेंड करेगा। लेकिन गिरते चढ़ते बाजार में पैसा लगातार निवेश करते रहना वो जरूरी है। तो ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम और अगर अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो मुझे लगता है कि इन फंड्स में आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। दिल्ली से धर्मवीर हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी धर्मवीर, आप सवाल पूछें। नमस्कार। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप थोड़ा ठीक है जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये बैंक के थ्रू हम म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? क्योंकि बैंक के थ्रू हम जैसे FD लेते हैं तो ये इसके लिए एक्सपर्ट हमें कहाँ मिलेंगे? कहाँ इनका कोई ऑफिस होते हैं? कहाँ इनका ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है कहाँ? हमें दिल्ली के बारे में बता पाएंगे? म्यूचुअल फंड, जो मुझे सवाल समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें और इसमें लगाएं कैसे। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का कई तरीका है। एक तो आपका बैंक भी आपकी मदद करता है। अब बहुत सारी फिनटेक कंपनीज हैं, पेटीएम मनी है, ET मनी है, इनके जरिए भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें ये एक अलग विषय है, इसके लिए आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। और अगर आप ये जानकारी ले पाने में या ये डिसाइड करने में अगर आप सक्षम नहीं है तो किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से संपर्क करें। AMFI इंडिया के वेबसाइट पे अपने पिन कोड डाल करके आप देख सकते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में कितने म्यूचुअल फंड एजेंट हैं। किसी से संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगे उचित फंड का निर्धारण करने में, चुनने में कि आपके समय के अनुसार आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है, इसके आधार पे आपको सही फंड की सलाह दे पाएंगे और वो आपका पैसा लगाने में भी आपकी मदद करेंगे। Our regular caller Kashinath from Chennai is online with us. Kashinath, welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम सर। गुड इवनिंग सर। धीरेन्द्र जी से मेरा सवाल है, जो EPF होता है सर, EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जी, उसमें कोई आदमी अगर 10 साल 20 साल काम करने के बाद जो एक मुश्त पैसा वो निकालना चाहेगा, उसमें TDS कट होगा या TDS फ्री, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, धन्यवाद। नहीं, उस पर TDS नहीं कटता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल पे। And if he has held it for 5 years, if he has been employed for 5 years, according to tax rules, it will be tax free even if there is such a thing, he can claim it. Yes. दिल्ली से पंकज हमारे साथ है। पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग धीरेन्द्र सर, मैं आपका डिस्कशन सुनता रहता हूं और आपके डिस्कशन से ही मैंने ये
किया कि शेयर मार्केट के बजाय म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जब हमने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो हमने जैसे देखा कि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है, ICICI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है और SBI हाइब्रिड भी है और इसका ICICI का भी हाइब्रिड फंड है जी। तो नाम सेम होने के बावजूद भी इनके फंडामेंटल्स में क्या डिफरेंस है या इनमें से किसको चुनना चाहिए, आपकी क्या सलाह होगी? हाइब्रिड फंड्स में कई तरीके के हैं। आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड जो कि लोग के लिए चुनाव या निवेश आसान करने के लिए बनाया गया था, म्यूचुअल फंड भी ढेर तरीके के हैं। 32 तरीके के कुल मिला के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें से आपको चुनाव करना पड़ता है, और 5-7 तरीके का तो हाइब्रिड फंड है। तो जो 4 तरीके के मुख्य हाइब्रिड फंड है, जिसमें कि एक फंड है जिसमें कि फंड मैनेजर निर्धारित करता है कि वो कितना इक्विटी में लगाए, कितना डेट में लगाए। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसमें कि अधिकतर पैसा, ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में लगा रहता है, कम पैसा डेट में लगा रहता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें कम पैसा इक्विटी में लगा रहता है, ज्यादा पैसा डेट में लगा रहता है। और बैलेंस्ड हाइब्रिड जिसमें करीब करीब आधा पैसा इक्विटी और डेट में बराबर पैसा लगा रहता है। इसके अलावा एक आर्बिट्राज फंड है या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड जिसमें या मल्टी एसेट जिसमें कि इक्विटी डेट के अलावा भी लोग गोल्ड में लगाते हैं या किसी और कमोडिटी में लगाने के लिए सक्षम है, और उसमें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसमें एलोकेशन बदलते रहे, उसमें किसी में कम किसी में ज्यादा लगाते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि जो भी आप कैटेगरी आप चुनते हैं, जिस भी तरह का फंड का आप चुनाव करते हैं उसमें ये जो कैटेगरी है ये सेबी द्वारा निर्धारित है। हर एक फंड को बताना होता है कि वो उनका ये फंड किस कैटेगरी का है, वो अग्रेसिव हाइब्रिड है या बैलेंस्ड हाइब्रिड है या कंजर्वेटिव हाइब्रिड है या इक्विटी सेविंग्स है। और अगर वो एक तरीके का फंड नहीं है तो आपका कंपैरिजन इवन नहीं है, आप अलग अलग तरीके के फंड को आप की तुलना कर रहे हैं। Pankaj from Mumbai is online with us. Pankaj, welcome to Market Mantra. Hi. First of all, I want to thank Market Mantra team for the great job that they are doing. Thank you. My question is, I have two questions. One is, as per, if I want to select any fund, what are the parameters that I should look for? Is NAV the only main factor? The other one is, are there any funds which are suitable for all kinds of market? Because now the market, we have seen a good rally. So what if there's a correction coming, or if even the market goes above, like it rallies further? So are there any funds which are evergreen? Yes. One is that, how to choose a fund. I think the most important thing which determines which kind of is choosing the kind of fund, and that entirely depends on your investment time frame. If you are going to invest for 5 years and more, if it is, and you're unlikely to need that, and one should never be investing lump sum money in any kind of market. So choose a equity oriented fund. Now depends which kind of equity oriented fund. As I was telling in the context of another question, there are many kind of equity funds. I would say that keep it simple. If you are investing for the first time, invest in an aggressive hybrid fund or a conservative hybrid fund and get used to the madness of the market, because markets will remain like this. It takes some time to get used to it. It gets some time to get used to the extreme volatility. Right now, investors are very pleased with the state of the market. Every day it goes up, and it has been going up for a while. So investors are unaware, or most new investors are completely unaware of the big decline that happens. And but one should be prepared for that, and that is why starting your investment in a manner that it does not scare you out of it forever. That is why consider those hybrid funds, and the kind of funds which you will call evergreen. I think for inexperienced person, I would say that start with a balanced advantage fund. These funds, invest reasonable amount of money in equity, reasonable amount of money in fixed income, and invest in a manner so that they are able to opportunistically benefit from any decline in the market or a rise in the market. Once you are little experienced, then, the kind of fund, as the flexi cap fund, are the ones which, where the fund manager decides to invest in, which segment of the market or emphasize which segment of the market. And that turns out to be an evergreen fund. You don't have to really take a call on whether you should be investing in
mid cap or small cap or a technology fund or a pharma fund, and one investor should not be doing it. Take full service of the fund by investing in a flexi cap fund, because you'll be incurring all the cost, and invest in a fund which can invest all over. बलरामपुर से रिंकी तिवारी हमारे साथ है। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी, स्वागत के लिए धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर मेरे पास जो भी रिटर्न थे, जो भी फंड थे, आपने सर निवेश करने के लिए लगा दिया पूरा, अब मान लीजिए वहां पे कम पड़ जाता है, तो उसके लिए अगर मुझे मान लीजिए सरकार से या किसी से अगर उधार लेना है, तो उसके लिए हमें कितना से मतलब पैसे दिए जाएंगे उधार? अच्छा, आप हैं और इन्वेस्टमेंट को मॉर्गेज करके या इन्वेस्टमेंट को के एवज में आप उधार देना चाहती हैं। आमतौर पे लोग 60% से ज्यादा जो भी आपने चाहे पैसा कितना भी लगाया हो, ये मार्क टू मार्केट हो जाता है। आपने 100 रुपया लगाया था, अगर उसका दाम अगर बढ़ करके 125 रुपया हो जाता है, तो 125 रुपये का 60% आपको उधार मिल जाता है, आपको लोन मिल जाता है। अगर आपका 100 रुपया घट करके अगर 80 रुपया हो जाता है, तो 80 रुपये का आपको घटे हुए रकम पे आपको 60% मिलेगा। और लगाने के बाद, आपके उधार लेने के बाद, पैसा लगाने के बाद और उधार लेने के बाद, अगर आपके निवेश के वैल्यू में गिरावट आती है, तो बैंक या जिसने भी आपको उधार दिया है वो वापस आपके पास आएगा आपसे ज्यादा मार्जिन लेने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है। एनबीएफसी और बैंक्स आपको 60% से ज्यादा आपके लोन पे आपका जो कोलैटरल है उससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते। जी, अगली खबर पे नजर डाल लेते हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 3000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम निकाल ली है। ताजा आंकड़ों के अनुसार उन्होंने शेयर बाजार से 4583 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन ऋण बाजार में 1483 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह नवंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार से विदेशी निवेशकों की कुल निकासी 3100 करोड़ रुपए की रही। और अगले कॉलर है जयपुर से जितेंद्र। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई 2 फंड हाउस है, निफ्टी 250 को ट्रैक कर रहा है, एक का नैब जो है 20 रुपया है, उसका एयूएम 500 करोड़ है, और दूसरे कोई फंड हाउस है उसका नैब 19 रुपया है और उसका 2000 करोड़ का एयूएम है, तो दोनों में कौन सा बेटर, अगर इस पे हम देखें तो? एक तो कि 19 रुपए और 20 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब 10,000 रुपए लगाएंगे और 19 रुपए वाले में आपको थोड़ा ज्यादा यूनिट्स मिलेगा, 20 रुपए वाले में आपका थोड़ा कम यूनिट मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में अगर वृद्धि 10% की होगी, तो दोनों ही स्थिति में आपको पैसा आपका बराबर ही बढ़ेगा। तो एनएवी का लेवल क्या है, इसका आपके परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि 2000 जैसे जैसे फंड बड़ा होता जाता है, और खासकर इंडेक्स फंड अगर बड़ा होता जाता है, तो उसका खर्चा कम होता जाता है। तो 2000 करोड़ रुपए वाले फंड का खर्चा चूंकि कम होगा, तो मुझे उम्मीद है कि 2000 करोड़ रुपए वाले फंड में आपको रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलेगा। क्या बड़े वाले फंड में, लार्जर फंड में लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी धीरेन्द्र जी? जी हाँ, एक तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी, और 2000 करोड़ के फंड में उसको एप्लीकेट करने में वो इंडेक्स की बराबरी बिल्कुल बहुत क्लोजली कर पाएगा, जो कि जिसको ट्रैकिंग एरर कहा जाता है एनालिटिकल लैंग्वेज में। तो 2000 करोड़ का फंड मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से ट्रैक भी कर पाएगा। जी, धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। Thank you, Dhirendra. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we tracked in this edition. 3 IPOs worth 21,000 crore rupees to hit the markets next week. Equity mutual funds attract nearly 40,000 crore rupees in September quarter, and foreign investors pull out over 3,000 crore rupees from the Indian capital markets in the first week of November. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.